Hello students, today we are going to study about the word problems of the chapter quadratic equation. Now in quadratic equations there are variety of questions like age problems, like fraction problems, also speed distance like upstream and downstream problems we did in the chapter linear equation. Along with that there will be some miscellaneous questions also, like questions based on test marks or also mensuration questions related to areas. Also there will be number questions, 2-digit number, unit digit, tens digit number like we did in the chapter linear equation, and many more. So we'll be studying these problems in today's video. So let us start with the first problem. Now as you can see here, it is given the sum of reciprocal of Rahman's ages in years 3 years ago and 5 years from now is 1 by 3. Find his present age. Now in age problems like we did in linear equation, what we used to do is we assume the present age to be x. So let the present age of Rahman be x years. Now the sum of reciprocal of Rahman's age 3 years ago. Now if the present age is x, the age 3 years ago will be 3 years ago, the age will be x minus 3 years. Similarly the age 5 years from now. So if the present age is x, the age 5 years from now will be 5 years later, or 5 years from now the age will be x plus 5 years. Now we have said the sum, so we have to add the reciprocal of Rahman's ages. So we have to find the reciprocal of these ages first, and then their sum is equal to 1 by 3. मतलब इनके reciprocals जो होंगे उनका sum. So according to question, ATQ means according to question, sum of reciprocal. So 3 years ago the age was x minus 3, so its reciprocal will be equal to 1 upon x minus 3 plus. Why plus? Because here it is given the sum of reciprocals. Now 5 years from now, the age 5 years from now is x plus 5 and its reciprocal is 1 upon x plus 5. So this is equal to 1 by 3 according to the question. Now we will solve this equation and we will find the present age. So this will be x minus 3 into x plus 5, x plus 5 plus x minus 3, we took the LCM, equal to 1 upon 3. Now we are converting this equation in general form. After converting into general form, we can opt any one of the three methods, that is method of factorization, completing the square, or the method of quadratic formula. Any method to find the roots, and that's roots, that is the value of x, will be our answer. So this will be 2x plus 2 into 3 is equal to x minus 3 into x plus 5. On solving this will be 6x plus 6 is equal to x square plus 5x minus 3x minus 15, and this in turn will be 6x plus 6 is equal to x square plus 2x minus 15 and x square minus 4x minus 15 minus 6 is equal to 0. So this will be x square minus 4x minus 21 is equal to 0. Now this is the general form. We can solve it by any one of the three methods, but I recommend you to solve this by quadratic formula method because that is the most easiest and method to solve. So on solving this by quadratic formula method, how to solve by quadratic formula method, you can find the link in the description about how to solve the equation by quadratic formula. Now the answer after solving this, the answer will be getting for x will be equal to 7 and minus 3. Now age cannot be negative. We know that age जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो -3 पॉसिबल नहीं है. सो और आंसर विल बी x इक्वल टू 3. तो हम लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू x, that is equal to 7 years. Let us move on to the next example.
Now here it is given, in a class test the sum of Shefali's marks in maths and English is 30. So इसका मतलब है कि शेफाली के जो मार्क्स का सम था मैथ्स और इंग्लिश के वो 30 है. Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, मतलब अगर उसे मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा होते और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस होते तो प्रोडक्ट वुड हैव बीन 210. मतलब द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 210. फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, मतलब दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स हमें बताने हैं. तो अब हमें बता क्या दिया है कि सम ऑफ मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30. सो लेट अस अज्यूम मार्क्स इन मैथ्स बी इक्वल टू x. If marks in maths is x and marks in English be equal to y. अब हमें बताया गया है कि sum of the marks is 30. अब sum of the marks is 30, that means x plus y is equal to 30. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. अब हमें आगे बताया गया है had she got 2 marks more in maths. अब मैथ्स में she was getting x marks. Had she got 2 marks more in maths, मतलब 2 मार्क्स ज़्यादा होते तो 2 marks more, if she got 2 marks more in maths, then the marks would have been x plus 2. And 3 marks less in English, 3 marks less in English, so 3 marks less in English, so marks would have been y minus 3, क्योंकि 3 marks less हैं. तो product of their marks would have been 210. मतलब कि दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट जो है वो 210 होता. अब इन दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट यानी कि x plus 2 इंटू y minus 3 इज इक्वल टू 210, ये हमें बता दिया गया है. ये हो गया इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 1 में से हम y की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं. तो फ्रॉम 1 we can say y equal to 30 minus x and we put this in equation 2. So this will be x plus 2 into y की जगह हम पुट कर रहे हैं 30 minus x इस y की जगह पे और minus 3 ऑलरेडी है तो this will be minus 3 is equal to 210. अब ये हो जाएगा x plus 2 into 27 minus x is equal to 210. अब ब्रैकेट ओपन करके this will be equal to x square minus x square plus 25x plus 54 is equal to 210, and this will be x square plus 25x plus 156 is equal to 0. अब यहाँ से आगे हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमें x की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो सॉल्व करने के बाद हमें x मिलेगा 12 या 13. तो अगर x 12 है यानी कि द मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू 12, देन द मार्क्स ऑफ इंग्लिश जो है वो हमें मिल जाएगा. यानी कि हम y माइनस 3 से 30 माइनस x करके हम y यानी कि मार्क्स इन इंग्लिश हम निकाल सकते हैं. अब यहाँ हम सॉल्व करते टाइम 2 केसेस लेंगे. फर्स्ट केस विल बी इफ़ x इज इक्वल टू 12, दैट इज दिस विल बी इक्वल टू इफ़ x is equal to 12, then y equal to 30 minus 12, so 30 minus 12, so y will be equal to 18, that is marks in English is 18. And if x equal to 13, then y equal to 30 minus 13, that is 27. So this is our final answer. सो आई होप यू अंडरस्टूड. हम x और y स्टार्टिंग में एज्यूम करेंगे. हमें 2 कंडीशन पता होंगी और दोनों कंडीशन यूज़ करके हम वैल्यूज़ निकालेंगे. अब यहाँ 2 पॉसिबल आंसर्स हैं यानी कि x 12 तो y 18 और x 13 तो y 27. इस तरह हमें हर क्वेश्चन के 2 आंसर मिल सकते हैं अगर रूट्स पॉजिटिव आ जाए तो. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Now here it is given the diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. तो इसके लिए पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक रेक्टेंगल. तो सपोज दिस इज़ अ रेक्टेंगल. अब हमें बोला गया है कि diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. अब यहाँ हमें बोला गया है 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड. तो पहले हम शॉर्टर साइड जो है यानी कि ये जो है ये हमें पता है दिस इज़ द शॉर्टर साइड. तो लेट द शॉर्टर साइड बी इक्वल टू x मीटर्स.
नाउ अगर शॉर्टर साइड हम x ले रहे हैं तो हमें डायगनल के बारे में बताया गया है कि डायगनल इज 60 मीटर्स मोर। तो डायगनल जो है यानी कि इसे हम डायगनल बोलेंगे तो ये डायगनल है x प्लस 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। अब इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, अब लॉन्गर साइड जो है वो ये वाला साइड है लॉन्गर साइड। सो इसे हम नेम कर देते हैं, लेट दिस बी ABC ट्रायंगल, ABC एंड D अ रेक्टेंगल। नाउ BC जो है ये एक लॉन्गर साइड है और AB इज़ द शॉर्टर साइड। तो लॉन्गर साइड के बारे में हमें बोला गया है कि लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड x है तो देयरफॉर द लॉन्गर साइड विल बी x प्लस 30, क्योंकि हमें बोला गया है लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर्स मोर। तो अब ये सारी चीज़ें हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो देयरफॉर द डायगोनल विल बी इक्वल टू x प्लस 60 मीटर्स and the longer side will be x plus 30 meters. Now we want to find the sides of the field. हमें तीनों साइड्स निकालनी है, यानी हमें AB BC निकालना है और डायगोनल का लेंथ भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें साइड्स बोला है तो हमें सिर्फ AB और BC ही निकालना है। तो अब यहाँ ABC जो ट्रायंगल है इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं, क्योंकि ये एंगल भी 90 डिग्री है। और अगर ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90। अब B 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि एक रेक्टेंगल है। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि in a right angle triangle the length of the square of the length of the hypotenuse is equal to sum of the square of remaining two sides। तो AC स्क्वायर यानी कि x plus 60 होल स्क्वायर is equal to AB स्क्वायर that is x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर that is x plus 30 होल स्क्वायर। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे, a plus b होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अब इसे और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। सो दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आगे हमें सॉल्व करके x की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, x विल बी इक्वल टू 90 और x विल बी इक्वल टू माइनस 30। अब माइनस 30 हम नहीं लेंगे क्योंकि साइड ऑफ द रेक्टेंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x इक्वल टू माइनस 30 इज़ नॉट पॉसिबल, ये हम लिख देंगे। और फिर हम लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 90, तो दिस इज़ द शॉर्टर साइड एंड BC is equal to x plus 30 और x plus 30 मतलब this will be equal to 120 meters, that is the longer side। so ये जो क्वेश्चन था मेंसुरेशन पे बेस्ड, यानी कि एरिया जो है ये हमने इसमें यूज़ किया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ हमें बोला गया है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज़ 180। अब डिफरेंस का मतलब होता है हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और स्क्वायर ऑफ टू नंबर मतलब दो नंबर्स के स्क्वायर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 180 है। अब आंसर जो है वो पॉजिटिव है, मतलब बड़े नंबर के स्क्वायर में से छोटा नंबर का स्क्वायर हम माइनस कर रहे हैं। अब द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी कि छोटे नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर से। छोटे नंबर का स्क्वायर 8 टाइम्स लार्जर नंबर से है, लार्जर नंबर के स्क्वायर से नहीं है। तो इसलिए अब हमें पता है कि दो नंबर से, एक लार्जर और एक स्मॉलर, तो हम एक नंबर को अज्यूम कर लेते हैं x और दूसरे को y। तो लेट द लार्जर नंबर बी इक्वल टू x। सो स्मॉलर नंबर जो है, स्मॉलर नंबर को हम मान लेते हैं y। तो अब लार्जर नंबर का स्क्वायर भी बड़ा होगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज़ 180। तो इसका मतलब है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। ये हो गया बड़े नंबर का स्क्वायर माइनस छोटे नंबर का स्क्वायर। अब इसके बाद हमें बोला गया है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर यानी कि y स्क्वायर। तो y स्क्वायर जो है इज़ इक्वल टू दैट इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी ये है इक्वल टू 8 टाइम्स x, क्योंकि लार्जर नंबर जो है वो हमने अज्यूम किया है x, तो इसलिए अब इसे हम मान लेते हैं कंडीशन 2।
अब वाई स्क्वायर जो है वो 8x है, यहाँ हम लिख देते हैं 80q यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पुट 2 in 1, सो दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया जनरल फॉर्म में। यहाँ से आगे हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड हम प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व करके हमें x की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, यानी कि x इक्वल टू 18 या x इक्वल टू -10। अब -10 जो है इसे हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें बोला गया है कि लार्जर नंबर इज़ 8 टाइम्स स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज़ 8 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, इसलिए हम x को 18 अज्यूम करेंगे। तो y जो है वो हो जाएगा, y स्क्वायर जो होगा वो 8 × 18 हो जाएगा, तो y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 144 और y की वैल्यू हो जाएगी 12। अब उसी तरह अगर हम x 10 -10 अज्यूम करते तो y स्क्वायर जो होता वो होता 8 × -10, अब ये हो जाता y स्क्वायर इक्वल टू -80, और हमें पता है स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वाला जो केस है ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए x इक्वल टू -10 इज़ नॉट पॉसिबल हम लिख देंगे। तो देयरफॉर द लार्जर नंबर इज़ 18 एंड द स्मॉलर नंबर इज़ 12। दिस वॉज बेस्ड ऑन नंबर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब ये एक स्पीड डिस्टेंस टाइम फॉर इक्वेशन है। ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर्स एट यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि ट्रेन 360 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहा है यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 4 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी, यानी कि उसे 1 hour कम लगता अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तो। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि स्पीड ज़्यादा होती तो टाइम कम लगता। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर 360 किलोमीटर्स जाना है और अगर स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम तो कम ही लगने वाला है, और हमें स्पीड मांगी गई है, तो हम अज्यूम करेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी इक्वल टू x किलोमीटर्स पर आवर। अब x किलोमीटर पर आवर अगर उसकी स्पीड है तो 360 किलोमीटर चलने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना होगा। सो टाइम फॉर 360 किलोमीटर्स विल बी इक्वल टू 360 अपॉन x, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमें पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम जो होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसलिए अब यहाँ से आगे हमें बोला गया है कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, तो इफ़ स्पीड इज़ 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो दिस विल बी x + 5 हो जाएगी स्पीड किलोमीटर पर आवर। अब अगर स्पीड x + 5 होगी तो इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस, 1 hour कम लगेगा। अब 1 hour कम लगेगा यानी कि x जो स्पीड थी उस पर टाइम लग रहा था 360 अपॉन x। अगर स्पीड x + 5 हो गई तो टाइम जो लगेगा वो 360 अपॉन x -1 लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले टाइम लग रहा था 360 अपॉन x, अब जो स्पीड बढ़ गई है तो टाइम अब लगेगा 360 अपॉन x, यानी कि जो पहले का टाइम था वो और -1, यानी हम लिखेंगे ऐसा। अब पहले आप ये पता करो कि अगर आपको 1 hour दिया हुआ है तो हम लिखेंगे इक्वल टू 1। अब इक्वल टू 1 लिखने के लिए इन दोनों में से बड़ी चीज़ कौन सी है। अब स्पीड जो है वो हो गई 360, स्पीड इज़ x + 5, सो टाइम विल बी इक्वल टू 360 अपॉन x + 5 hours, और पहले केस में था 360 अपॉन x। अब इन दोनों क्वांटिटी में से आपको बताना है बड़ी क्वांटिटी कौन सी है। तो बड़ी क्वांटिटी 360 अपॉन x है, क्योंकि दोनों में न्यूमरेटर में 360 है लेकिन डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर यहाँ है x + 5, तो जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 360 अपॉन x की वैल्यू बड़ी होगी कंपेयर टू 360 अपॉन x + 5, क्योंकि दोनों में नंबर सेम है 360, लेकिन डिवाइड करने वाला नंबर जो है वो बड़ा यहाँ है x, और यहाँ x + 5 ये नंबर बड़ा है, तो अगर डिनोमिनेटर यहाँ बड़ा है तो वैल्यू इसकी छोटी हो जाएगी। जैसे कि सपोज़ 12 से हम डिवाइड करते हैं, 12 से 2 को डिवाइड करें, 12 से 6 को डिवाइड करें, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 6 और यहाँ हमारा आंसर आएगा 2। अब दोनों सिचुएशंस में जो बड़ा आंसर है वो बड़ा आंसर हमें मिला यहाँ जब हमने डिनोमिनेटर छोटा कर दिया। अब डिनोमिनेटर छोटा जो है वो यहाँ है x, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ये बड़ा होगा।
सो हम लिखेंगे कि 360 अपॉन x, इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं 360 अपॉन x प्लस 5 तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब यहाँ पे बड़ी चीज़ जो है, बड़ी चीज़ x प्लस 5 यहाँ है, तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होगी, तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। अब इसे समझने का तरीका एक और है, वो तरीका ये है कि अगर हम ऐसा मान लें कि 360 अपॉन एक्स जो टाइम पहले लग रहा था और 360 अपॉन एक्स प्लस 5 यानी कि स्पीड बढ़ाने का टाइम, दोनों में डिफरेंस है 1 आवर का। अब छोटी क्वांटिटी जो है वो ये है 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज द स्मॉलर क्वांटिटी। तो अगर बड़ी क्वांटिटी में से 1 आवर माइनस कर देंगे तो वो छोटी क्वांटिटी के इक्वल हो जाएगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से हमें यही रिजल्ट मिलेगा, यानी कि दोनों सिचुएशन सेम है, सिर्फ समझने का तरीका अलग होगा। यहाँ हमने टाइम के डिफरेंस से बनाया और यहाँ हमने बड़े में से छोटा, बड़े में से इक्वेट करने के लिए माइनस कर दिया। अब इसे आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 360 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्स, जैसे आप इसे कहना चाहें। दोनों तीनों तरीकों में सही है और दोनों सबसे आंसर सेम ही आने वाला है। अब हम सॉल्व करते हैं इसे, यानी कि 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम 360 कॉमन ले लेते हैं। सो 360 कॉमन, सो दिस विल बी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। So this will be 360 common, x plus 5 minus x upon x into x plus 5 is equal to 1। तो अब ये हो जाएगा 360 into 5 upon x into x plus 5 is equal to 1। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x into x plus 5 जो है वो चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 360 into 5 जब हम करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1800, इक्वल टू 1800। So this will be x square plus 5x minus 1800 equal to 0। अब ये हो गया जनरल फॉर्म में। इसे हम सॉल्व करेंगे, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से करेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन से करेंगे तो हमें फैक्टर्स ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सो दिस इज़ हाउ विल टैकल द स्पीड डिस्टेंस प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours। अब पहले तो ये 9 3/8 जो है ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे। सो दिस विल बी 9 8 ज़ा 72, 72 प्लस 3 दैट इज 75 अपॉन 8। 75 अपॉन 8 आवर्स लगते हैं 2 टैप्स को साथ में एक टैंक फिल करने में। अब द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। यानी कि जो टैप ऐसा है जिसका डायमीटर बड़ा है, अब डायमीटर बड़ा है यानी कि उसमें से ज़्यादा पानी निकलेगा, तो टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन, यानी कि ऐसा टैप जिसका डायमीटर स्मॉलर है। बड़े डायमीटर वाले टैप को 10 आवर्स कम लगते हैं स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन बी फिल्ड सेपरेटली। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस हैं वर्क टाइम वाले जो प्रॉब्लम्स थे, हमने लीनियर इक्वेशंस चैप्टर में किए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस तरह के ये प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर भी हमने टैप वाले क्वेश्चंस किए थे। अब यहाँ पर हमें 1 आवर के हिसाब से इक्वेशन बनाना है। ऐसे क्वेश्चंस का हिंट ही वही है कि हमें जनरली 1 आवर के हिसाब से इक्वेशन बनाना है। अब अज्यूम कर लेते हैं कि जो टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर है उसे हमें पता है कि स्मॉलर डायमीटर वाले टैप को टाइम जो है वो, स्मॉलर डायमीटर है टैप का, एक मतलब 2 टैप हैं हमारे पास, एक का डायमीटर स्मॉलर है, एक का डायमीटर लार्जर है, दोनों में से वाटर फ्लो हो रहा है। अब दोनों में से हमें जो ज़्यादा टाइम लगेगा वो स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से लगेगा, क्योंकि यहाँ से पानी जो है वो स्लो निकलेगा, तो टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, स्मॉलर डायमीटर टैप बी इक्वल टू x आवर्स। तो अब टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप, यानी कि जो बड़े डायमीटर वाला टैप है, उससे जो हमें टाइम लगेगा वो इससे कम होगा। अब अगर स्मॉलर वाले से हमें टाइम x आवर्स लग रहा है तो लार्जर वाले से सपोज हमें लग रहा है x माइनस 10। अब x माइनस 10 इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया गया है कि लार्जर डायमीटर वाले को 10 आवर्स लेस लगते हैं। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली, यानी कि अकेला लार्जर डायमीटर टैप या अकेला स्मॉलर डायमीटर टैप यूज़ करेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा गया है।
अब अगर x आवर्स में पूरा टैंक भरता है, इस सिचुएशन को समझने के लिए ऐसा मान लीजिए कि सपोज एक टैप है जो 2 आवर्स में टैंक भरता है, 2 आवर्स में फुल टैंक फिल हो जाता है। अब अगर 2 घंटे में पूरा टैंक भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, हाफ भरेगा ऑब्वियसली। सो हाफ अमाउंट ऑफ टैंक विल बी फिल्ड, हाफ अमाउंट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर। अब ये वर्क वाले प्रॉब्लम जैसा है, वर्क वाले प्रॉब्लम जो हमने लीनियर इक्वेशंस में देखे थे। इसी तरह अगर सपोज कर लो कि 3 आवर्स में टैंक फुल भरता है तो 1 आवर में 1/3 अमाउंट भरेगा, सेकेंड आवर में 1/3 और थर्ड आवर में 1/3। इसी तरह अगर 4 आवर्स में टैंक फिल होता है तो 1 आवर में 1/4, सेकेंड आवर में 1/4, थर्ड आवर में 1/4, फोर्थ आवर में 1/4। इस तरह टैंक जो है वो पूरा भर जाएगा। अब यहाँ हमें बोला गया है कि x आवर्स में पूरा टैंक भरता है, तो 1 आवर में कितना भरेगा, तो 1 आवर में भरेगा 1/x, क्योंकि 2 आवर्स में अगर भर रहा था तो 1 आवर में 1/2, 3 आवर्स में भर रहा था तो 1 आवर में 1/3, 4 आवर्स में भर रहा था तो 1 आवर में 1/4। इसी तरह x आवर्स में फिल होगा तो 1 आवर में हो जाएगा 1/x। ऑल्सो अब हमें बोला गया है कि जब दोनों साथ में चलते हैं तो 75/8 आवर्स में पूरा टैंक भरता है। अब 75/8 आवर्स में पूरा टैंक भरेगा तो 1 आवर में, इन 1 आवर जो अमाउंट ऑफ टैंक फिल होगा वो 8/75 होगा। क्यों? क्योंकि 1 आवर में रेसिप्रोकल होता है, जिस तरह यहाँ था x आवर्स में पूरा फिल हो रहा था तो 1 आवर में 1/x। तो जब दोनों टैप साथ में चलेंगे, इफ़ बोथ टैप work together in 1 hour। अब 1 आवर, क्योंकि 1 आवर के हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे तो इन 1 आवर स्मॉलर टैप जो होगा वो 1/x अमाउंट फिल करेगा प्लस 1/x - 10। अब प्लस इसलिए क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया था बोथ टैप्स टुगेदर फिल द टैंक। अब यहाँ हम इक्वल कर देंगे, 75/8 आवर्स में पूरा भर रहा है तो 1 आवर में 8/75 है तो इक्वल टू 8/75। अब यहाँ से आगे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। सो x + 10 + x - 10 प्लस x into x - 10 is equal to 8/75. So this will be 2x - 10 into 75 is equal to 8x into x - 10. So this will be 150x minus 750 is equal to 8x square minus 80x। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये हो गया जनरल फॉर्म में। अब यहाँ हम चाहें तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, शायद 4 से भी हो रहे हैं, नहीं 4 से नहीं हो रहे हैं ये, तो तीनों नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम 2 से डिवाइड करके इक्वेशन छोटा कर सकते हैं। लेकिन हम सॉल्व करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा वही क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, जिससे स्टेप्स जो है वो ईजी हो जाएंगे और ज़्यादा लेंदी आंसर्स नहीं होंगे। अब x की जो वैल्यू है वो 2 वैल्यूज़ हमें मिलेंगी, तो यहाँ से सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिलेंगी x = 25 या x = 30/8। अब x = 25 यानी कि स्मॉलर डायमीटर वाला टैप 25 आवर्स लेता है, तो लार्जर डायमीटर वाला जो टैप होगा वो 25 - 10 यानी कि 15 आवर्स लेगा। उसी तरह स्मॉलर डायमीटर वाला अगर 30/8 आवर्स लेता है तो लार्जर डायमीटर वाला जो होगा वो 30/8 - 10 अगर हम करते हैं तो यहाँ से आंसर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव टाइम तो ले नहीं सकता, तो इसलिए x = 30/8 के साथ हम लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, और देयरफॉर x = 25 हमारा आंसर होगा। एंड द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इज़ 15। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है बोथ द टैप्स, तो इसलिए ध्यान रखना कि आपको स्मॉलर डायमीटर का टैप और लार्जर डायमीटर टैप दोनों का आंसर आपको लिखना है, यानी कि दोनों का टाइम वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा लास्ट में। तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज़ 25 आवर्स and the time taken by larger diameter tap is 15 hours. Now next example is an express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations। यानी कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है 1 आवर कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से
132 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए, यानी कि दोनों ट्रेन ट्रैवल कर रही है 132 किलोमीटर, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन को 1 आवर कम लग रहा है विदाउट टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब हमें जहाँ बीच के स्टेशन पे जो ट्रेन रुकेंगी उस टाइम को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, यानी कि एवरेज स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से। तो अगर फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, हमें दोनों ट्रेन्स की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो अगर हम x अज्यूम करते हैं तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसके लिए हमें बोला गया है 11 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि तब एवरेज स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की वो हो जाएगी x+11। सो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी इक्वल टू x किलोमीटर्स पर आवर। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, हमें बोला गया है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर्स पर आवर ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा x+11 किलोमीटर्स पर आवर। अब एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन को 1 आवर कम लगता है। तो इसका मतलब है कि टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये 1 आवर कम है, किससे? टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन से। तो अगर दोनों को हमें इक्वल करना है तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कम है, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस। तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ +1 कर देंगे तो दोनों का टाइम इक्वल हो जाएगा। हम छोटी क्वांटिटी में ऐड करेंगे तो वो बड़ी क्वांटिटी से इक्वल हो जाएगा। अब हमें पता है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब डिस्टेंस हमें बोल दिया गया है दोनों के लिए 132 किलोमीटर्स। सो ये हो जाएगा 132 अपॉन स्पीड। सो स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज x+11 +1 इज इक्वल टू 132 अपॉन पैसेंजर ट्रेन स्पीड दैट इज x। अब इसे हम एक तरफ लेंगे तो 132 अपॉन x+11 माइनस या हम x+11 वाले टर्म को सामने शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x+11 इज इक्वल टू 1। अब ये एक्चुअली हमने इस टर्म को सामने शिफ्ट किया है तो यहाँ इक्वल टू 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 132 कॉमन 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x+11 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से आगे हम सॉल्व करके जनरल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे। सो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दिस इक्वेशन विल बी x² + 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आगे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की दो वैल्यू हमें मिलेंगी, तो x होगा -44 या x होगा 33। -44 इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो देयरफॉर द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज़ 33 एंड द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 33 + 11 दैट इज़ 44। तो हमें दोनों की स्पीड लिखनी पड़ेगी। सो दिस इज़ हाउ विल डील विथ द स्पीड डिस्टेंस टाइम क्वेश्चंस। नाउ moving on to the next example. Now here it is given sum of areas of two square is 468. So there are two squares और दोनों स्क्वायर्स के एरियाज का सम है 468 इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज़ 28। यानी कि एक स्क्वायर बड़ा है एक स्क्वायर छोटा है, इसलिए उनके पेरीमीटर का डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो हम मान लेते हैं इस तरह हमारे पास दो स्क्वायर हैं, एक छोटा स्क्वायर एक बड़ा स्क्वायर। अब हमें बोला गया है कि इनके एरियाज का सम है 468। तो जो बड़ा स्क्वायर है इसकी साइड हम x मान लेते हैं, तो स्क्वायर है चारों साइड इक्वल होंगी, और छोटे की साइड हम y मान लेते हैं। तो लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी इक्वल टू y। अब एरिया बड़े स्क्वायर का एरिया जो होगा, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो इसका एरिया हो जाएगा x² और इसका एरिया हो जाएगा y², क्योंकि स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। अब हमें बोला गया है सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर, यानी दोनों के एरियाज का सम। तो क्वेश्चन के हिसाब से x² + y² इज इक्वल टू 468। ये हो गया एक इक्वेशन। इफ़ द डिफरेंस
ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24। अब पेरीमीटर जो होता है बड़े स्क्वायर का पेरीमीटर या छोटे स्क्वायर का पेरीमीटर हो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाय 4 टाइम्स द साइड। 4 टाइम्स द साइड जो होता है ये होता है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़े स्क्वायर का पेरीमीटर बड़ा होगा और छोटे स्क्वायर का पेरीमीटर छोटा होगा। सो 4 टाइम्स x that is the perimeter of the larger square minus 4 times y that is the perimeter of smaller square is equal to 24 according to question। अब यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 24 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 6। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ हमें बोला गया था डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, इसलिए हमने बड़े स्क्वायर का पेरीमीटर पहले लिखा, क्योंकि बड़े स्क्वायर का पेरीमीटर बड़ा होगा, छोटे स्क्वायर का पेरीमीटर छोटा होगा। तो 4 टाइम्स x यानी कि बड़े स्क्वायर का पेरीमीटर माइनस 4 टाइम्स y छोटे स्क्वायर का पेरीमीटर इज़ 24। नाउ x माइनस वाई जो है वो 6 आ गया, तो x को या हम y को लिख सकते हैं x माइनस 6। तो x माइनस 6 हमें y की वैल्यू मिल गई, ये हमने लिखा फ्रॉम 2। तो इसे हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 468। हम यहाँ पुट कर रहे हैं ये वैल्यू। सो इसे हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दिस विल बी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 468। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 432 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 432। सो दिस विल बी 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 432 इज इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बाय 2 दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। तो x की जो वैल्यू होगी दैट विल बी x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0। सो x कॉमन, दिस विल बी x माइनस 18 एंड प्लस 12। सो दिस विल बी x इक्वल टू माइनस 12, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि x जो है वो स्क्वायर का साइड है और स्क्वायर का साइड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x इक्वल टू 18 इज़ द आंसर। और x अगर 18 है तो y जो है दैट इज़ x माइनस 6। तो y की जो वैल्यू होगी वो y की वैल्यू हो जाएगी 12। तो ये होंगे हमारे दोनों आंसर्स। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So it is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find the length and breadth। यानी कि यहाँ हमें पूछा गया है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, रेक्टेंगुलर यानी मैंगो ग्रूव यानी कि शेप होगा रेक्टेंगल, और यहाँ हमें बता दिया गया है कि लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि अगर सपोज ये एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है तो यहाँ हमें बोला गया है कि लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को अगर हम x अज्यूम करते हैं तो लेंथ हो जाएगा 2x, क्योंकि लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एंड एरिया 200। अब एरिया हमें बोला गया है 800। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इसकी वैल्यू हमें 800 बोला गया है। तो x इंटू 2x इज इक्वल टू 800। अब हमें बोला गया है इज़ इट पॉसिबल, यानी क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, इधर 4x स्क्वायर इक्वल टू 400। अब स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है यानी येस इट इज़ पॉसिबल, तो हम लिख देंगे येस इट इज़ पॉसिबल। अब ये लाइन लिखने के नॉर्मली एग्ज़ाम में मार्क्स होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है इज़ इट पॉसिबल, तो उसका आंसर लिखने के मार्क्स होंगे। अब इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो देयरफॉर लेंथ जो है वो हमने अज्यूम किया है 2x, तो लेंथ इक्वल टू 2x दैट इज़ इक्वल टू 800 मीटर्स हो जाएगा, एंड ब्रेथ इक्वल टू x, सो दैट इज़ इक्वल टू दिस विल बी लेंथ इक्वल x इक्वल टू 20 एंड 2x विल बी इक्वल टू 40। सो लेंथ इक्वल टू 40 मीटर्स एंड ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर्स। सो स्टूडेंट्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ ये पूछा जाता है इज़ इट पॉसिबल, इफ़ यस फाइंड द लेंथ, या फाइंड द, जैसे सेकेंड क्वेश्चन भी है यहाँ पर, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज इज़ इट पॉसिबल, डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। यहाँ ये लाइन जो है येस इट इज़ पॉसिबल या नो इट इज़ नॉट पॉसिबल जो है, ये लाइन लिखने के कुछ मार्क्स होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ बोला गया है
Is the following situation possible? If so, determine the present ages. The sum of ages of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their ages was 48. अब यहाँ पर भी पूछा है is it possible. तो अब let the present age of, हम दो फ्रेंड्स हैं तो हम A और B एज्यूम कर लेते हैं. तो प्रेजेंट एज ऑफ A बी x एंड प्रेजेंट एज ऑफ Y B इक्वल टू y. अब हमें बोला गया है सम ऑफ देयर एजेस इज 20, तो यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 20. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. 4 ईयर्स अगो, तो 4 ईयर्स अगो A की एज हो जाएगी x माइनस 4, B की हो जाएगी y माइनस 4 और उनका प्रोडक्ट यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 48. तो हमें बोला गया है ये पॉसिबल है या नहीं. तो फ्रॉम 1 हम लिख देंगे y इक्वल टू 20 माइनस x और इसे हम पुट कर देंगे 2 में. तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 20 माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 48. तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इक्वल टू 48. तो अब इसे सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल टू 0. इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0. अब यहाँ अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से आगे सॉल्व करने जाएंगे क्योंकि हमें बोला इज़ इट पॉसिबल, तो यहाँ जो d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 48 यानी कि नेगेटिव. तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो हम बोलते हैं नो रियल रूट्स पॉसिबल. तो नो रियल रूट्स पॉसिबल, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा नो द सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल या नो इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो इस तरह आपको ध्यान रखना है इज़ इट पॉसिबल क्वेश्चंस में. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. अब यहाँ बोला गया है इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, यानी क्या ये पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करें हुज पेरीमीटर इज़ 80. अब पेरीमीटर तो लेंथ को हम मान लेते हैं x मीटर्स और ब्रेड्थ को मान लेते हैं y मीटर्स. तो x इज़ द लेंथ एंड y इज़ द ब्रेड्थ. तो पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2 ब्रैकेट l प्लस b, यानी कि 2 ब्रैकेट x प्लस y. इस केस में 80 दिया हुआ है. और एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है l इंटू बी दैट इज़ x इंटू वाई इज़ 400. अब यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 40 और देयरफॉर y जो होगा वो 40 माइनस x होगा. तो y की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400. अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आएगा 0. अब 0 आएगा तो इसका मतलब यह है कि रूट्स जो है वो रियल और इक्वल है और हम बोलेंगे दिस सिचुएशन इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल. अब d0 है यानी कि रूट्स रियल और इक्वल है, तो जो स्क्वायर x और y की वैल्यू इक्वल आएगी, यानी कि ये एक स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल नहीं हो सकता. लेकिन हम एक स्क्वायर के बारे में ये बोल सकते हैं कि स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल, हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल तो होता ही है. तो इसलिए हम डायरेक्टली इज़ इट पॉसिबल करके हम इसके रूट्स निकाल लेंगे, यानी कि x की वैल्यूज़ जो आएंगी वो दोनों इक्वल वैल्यूज़ आएंगी 20, 20. तो लेंथ 20, ब्रेड्थ इक्वल टू 20, ये होगा इसका आंसर. अब यहाँ आपको ध्यान रखना है फिर से कि इज़ इट पॉसिबल जो है उसका आंसर आप लिखें, यानी कि इज़ इट पॉसिबल लिखें. सो ये थे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो NCERT टेक्स्ट बुक में हैं. यहाँ हमने सारे हर तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स इस सेशन में कवर किए हैं. आई होप कि आप इन सारे एग्जाम्पल्स को एक बार खुद से ट्राई करेंगे. एंड दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज statistics. So I hope you understood each and every question that we tried on today, and if you are having any doubts you can put your doubts in the comment section, or you can contact as I have given the email ID and contact number also. So अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं. कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर पुट ऑन करें और सब्सक्राइब करें टू स्टे अपडेटेड विद द अपकमिंग वीडियोज़. So